सो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो बिल्कुल सिंपल है, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो अल्टीमेटली ये है कि इसको हमने फिर फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हम जब हमने इसके देखे तो देयर आर थ्री सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो बेसिक पार्ट्स अगर आप पूछोगे मुझसे तो एटम के दो पार्ट्स होते हैं बेसिक, न्यूक्लियस एंड शेल। न्यूक्लियस एंड शेल। न्यूक्लियस में कौन कौन रहता है? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एंड शेल्स में कौन होता है? ओनली इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो दिस इज द शेप ऑफ एन एटम जो मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। दिस इज द शेप। यू कैन जस्ट इमेजिन बाय लुकिंग एट दिस के यार एटम लुक्स लाइक इस तरह से कोई एटम की जो है ना वो शेप होती होगी। एंड इनफैक्ट एटम का जो न्यूक्लियस है इट्स बेसिकली बिल्कुल सेंटर में होता है, और अराउंड द न्यूक्लियस हमारे पास जो है वो डिफरेंट शेल्स होते हैं। सो डिफरेंट शेल्स मीन्स के सम शेल्स आर शॉर्टर, some shells are longer. So it depends के किसी किसी शेल में जो है वो कम इलेक्ट्रॉन्स आ रहे होते हैं, किसी किसी शेल्स में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। every shell has its own capacity. Every shell has its own capacity. जैसे कि just like our home के कुछ some rooms are, you can say, having a more area, and some rooms are like you can say smaller, which cannot occupy more than 5%, and we have some rooms which can occupy more than 10%. So same goes with an atom. इसमें भी कुछ shells ऐसे होते हैं कि जो which can occupy 2 electrons, some shells can occupy 8 electrons, some can occupy 18 electrons, some can occupy 32 electrons. So वो shell की capacity है। ओके, तो अगर मैं थोड़ा सा सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिटेल में डिस्कस करूं तो सब एटॉमिक लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ एन एटम। सब एटॉमिक मींस इट्स अ पार्ट ऑफ एन एटम, यू नो कि एटम इज कंपोज्ड ऑफ द थ्री थिंग्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। किसी भी एटम में कोई भी एटम इज कंपोज्ड ऑफ थ्री थिंग्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, so it's they are the parts of an atom. They are the parts of an atom जो कि होते ही होते हैं, लाजमी, 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 at any cost they would be there basically. तो you will see in your past paper के examiner would be giving you this table, और उसमें इसमें से कोई भी चीज उसने मिस की हुई हो सकती है, कोई भी चीज, एनीथिंग he can miss, anything he can miss. Remember, sometime he miss, you can say, the charge of an electron, sometime charge of a proton, sometime charge of neutron, sometime mass of electron, sometime mass of proton, mass of neutron, the name of electron, the name of proton, the name of neutron. It depends, you have to memorize this table. So the charge of electron is -1. It's the relative charge. You know कि हर चीज का कोई ना कोई मतलब है. I didn't write only charge. Only charge means exact charge. We are not supposed to discuss exact charge of an electron. You know, exact charge is 1.6 exponent minus 19 coulombs. It's useless for us. We only want to know that what is the charge on an atom, positive, negative, or neutral. That's it. That's it. We are only interested in this. We don't want to go in detail के how much the charge, what is the value. हमें क्या करना है उसका भाई? No. You would be studying in physics basically. प्रोटॉन में आ जाओ जरा भाई, प्रोटॉन +1 है यार, दैट्स इट, पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन इज पॉजिटिव, दैट्स इट. And neutron is neutral, there is no charge, zero charge. So if you talk about the relative mass of an electron, so the relative mass would be 1 over 1840. You know what does it mean? Okay, let's suppose if somebody is having 200 kg. Let's suppose if somebody is having 200 kg, and you are having, 10 kg. Let's suppose मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको एक. तो you can do a comparison. You can do a comparison कि I am this much, I am this much lower than this person. So basically we are doing a comparison. You know, we can doing a comparison. Or I can say that this body
is 100 times heavier than me. You know, it's a comparison. So that's it's a comparison. This number is a comparison. इलेक्ट्रॉन इतना लाइट होता है, इतना लाइट होता है कि यू कैन से it's 1 over 1840 times, 1 over 1840 times lower than, lighter than, lighter than proton. You know, इतना smaller, इतना lighter है ये. So ये भी नहीं कि only 100 times, only 200 times. No, 1840 times. You know, it's a lot. It's a lot. तो बहुत ही lightest particle है, and you can see the relative mass of proton is 1, the relative mass of neutron is 1. Again, I'm saying it's not exact mass. It's not an exact mass. Again, I'm saying, okay? ये exact नहीं है, याद रखना. It's not an exact. Remember. तो it's a relative term. It's a relative term. You have iPad, you have mobile. तो let's do a comparison. भाई आपके पास जो मोबाइल है, okay, it's 2 times heavier than me, than my mobile. तो make sense, okay, हो सकता है. तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि मुझे exact mass बताओ. My mobile is having 10 grams weight and your mobile is having 15 grams weight, then I would be doing a comparison. It's not mandatory. I am only having a rough comparison. Okay, just got an idea, just for an idea कि यार how much it. तो इसलिए यहाँ पे जो है ना only one लिखे हुए हैं. So basically it's a simple comparison. Remember, okay? तो you have to memorize this table. In fact, तो then we generally discuss proton number. Proton number is also known as atomic number. Proton number is also known as atomic number. They are the same thing. They are the same thing. So proton number is the CNIC card of an element. It's an identity of an element. You know, ये बताने के बाद जब हम स्कूल में बच्चों से like like जब assessment उनका होता है या कोई कोई टाइप उनका होता है, you know, a lot of times I see कि बहुत सारे बच्चों ने लिखा हुआ होता है व्हाट इज प्रोटॉन नंबर. वो कहता है CNIC कार्ड. अबे भाई, मेरे भाई भाई भाई, इसलिए थोड़ी बताया था कि तुम लिख के आ जाओ पेपर में यार. ओ माय गॉड, इसलिए थोड़ी. इट्स एन आइडिया. मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ. इसकी इंपॉर्टेंस है. जस्ट लाइक योर फिंगरप्रिंट, जस्ट लाइक योर फिंगरप्रिंट, you have your own identification. You know, कि हर बंदे का फिंगरप्रिंट इज डिफरेंट. सो फिंगरप्रिंट इज द बेस्ट आइडेंटिफिकेशन, यू नो. तो इसी तरह से प्रोटॉन नंबर एक आइडेंटिटी देता है एलिमेंट को. हर एलिमेंट का प्रोटॉन नंबर इज यूनिक. Hydrogen has one proton number, so nothing can have one. Nothing can have one. Chlorine has 17 proton numbers, so nothing can have 17. भाई फिक्स होता है ये फिक्स होते हैं नंबर्स, फिक्स होते हैं ये नंबर्स. तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये CNIC कार्ड है. तो if you can see the examiner is asking the definition of proton number or atomic number, so you can see, you can write total number of protons present in the nucleus of an atom. बस इतनी सी बात है, सिंपल. ओके, प्रोटॉन नंबर क्या क्या बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी बताता है, याद रखना. ओके, लेट्स सपोज अच्छा एक बात और कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है. प्रोटॉन नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर. भाई बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत पल्लू से बांधने वाली बात है. बात समझ रहे हो? गोल्ड के पेन से लिखने वाली बात है. इट्स अ डायमंड वर्ड. प्रोटॉन नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर. A lot of times students ask, a lot of times, you know, I'm not talking about the senior ones. उनको भाई अब पढ़ते पढ़ते करते 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 लेकिन फिर भी लाइक फिर भी कंफ्यूजन कभी कभार होती है. सब कौन सा प्रोटॉन नंबर है, कौन सा प्रोटॉन नंबर है. तो भाई प्रोटॉन नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर यार. आप देख के पहचान लो. आपको पीरियोडिक टेबल गिवन. लेट्स सपोज दिस इज द पीरियोडिक टेबल. लेट्स सपोज दिस इज द पीरियोडिक टेबल. तो मैंने आपको कहा
कि भाई जरा जल्दी से बता दो आयरन का व्हाट इज द प्रोटॉन नंबर। अब बच्चा मुझसे पूछ रहा है ऊपर वाला है या नीचे वाला है, अब तुम खुद बताओ ऊपर वाला है या नीचे वाला है। तो मैं बोलूंगा ऊपर वाला है। आगे से सवाल आता है आपको कैसे पता लगा। मैंने तो बताया था ना प्रोटॉन नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर। तो होल नंबर कौन है, 55.8 है या फिर 26 है। होल नंबर इज 26। और दूसरी बात कि स्मॉलर नंबर वुड बी द प्रोटॉन नंबर, ऑलवेज स्मॉलर नंबर वुड बी द प्रोटॉन नंबर। सो दिस इज योर प्रोटॉन नंबर दैट इज 26। तो ये याद रखिएगा। ओके तो क्या कहा मैंने, प्रोटॉन नंबर इज गोइंग टू टेल यू द टू थिंग्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। सो लेट्स सपोज मैग्नीशियम का प्रोटॉन नंबर इज 11। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन मैग्नीशियम, यू विल से 12। हाउ मेनी प्रोटॉन्स, हाउ मेनी प्रोटॉन्स इन मैग्नीशियम, you can say 12 क्योंकि प्रोटॉन नंबर is 12. So proton number is going to tell you regarding electron and proton. Okay तो आइए जरा, प्रोटॉन नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय जी, कैपिटल जी, कैपिटल जी, जी 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 बोले तो प्रोटॉन नंबर, जी बोले तो प्रोटॉन नंबर। ओके और चलें जी, इन अ न्यूट्रल एलिमेंट, इन अ न्यूट्रल स्पीशी इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू प्रोटॉन्स। भाई मैं आपको कह रहा हूं व्हाई सोडियम हैज नो चार्ज। आप बोलोगे जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने प्रोटॉन हैं, दे आर गोइंग टू कैंसिल ईच अदर, दैट्स व्हाई सोडियम हैज नो चार्ज, दैट्स व्हाई सोडियम हैज नो चार्ज। ओके तो मैं आपसे पूछूं why aluminium is neutral, it has 13 protons and 13 electrons, that's the reason they are going to cancel each other, इसलिए इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। ओके चलें जी, mass number is also known as nucleon number, is also known as nucleon number, है ना भाई। जैसे कि जैसे कि मिसाल के तौर पर मदारका है, मदारका, मदारका का नाम है मदारका। प्यार से मदारका के अब्बू कहते हैं मद्दू इधर आना जरा चाय लेकर। तो भाई हो सकते हैं ना एक बंदे के दो नाम यार, क्या हो गया, कोई मसला नहीं है। मास नंबर और न्यूक्लियन नंबर एक ही बात है। मैं मद्दू बोलूंगा तब भी मदारका भाग के आएगा, मदारका बोलूंगा तब भी मदारका आएगा। मैं जब मास नंबर बोलूं तब भी आप यही समझो, जब मैं न्यूक्लियन नंबर बोलूं तब भी यही समझो। क्योंकि a lot of times I have seen many times। सर कैसे पता लगेगा न्यूक्लियन नंबर, क्या मतलब कैसे पता लगेगा यार। मैथ नंबर इज द न्यूक्लियन नंबर, सिंपल सिंपल सिंपल। मैंने जो आपको पीरियोडिक टेबल दिखाया था ना, ये जो आपको 58.5 लिखा, 55.8 लिखा हुआ नजर आ रहा है, इट्स अ मास नंबर, इट्स अ न्यूक्लियन नंबर काइंड ऑफ। वो मैं बाद में आपको डिटेल बताता हूँ कि इसमें क्या डिफरेंस है। So, for the time being, I'm saying, okay, what is the difference between atomic number and nucleon number? Nucleon number is greater than atomic number. Remember, always, okay? So, it's the sum of proton and neutrons present in the nucleus of an atom. Nucleus of an atom. You know, proton number and proton and neutron, इससे आपको किसी भी एटम का मास पता लगेगा, टोटल मास। इट मेक्स अप द टोटल मास ऑफ एन एटम। मास इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, mass is due to electron. Sorry, mass is not due to electron. Electron is very light particle, very light particle. You know, if you have seen that it was 1/1840, बहुत ही small particle है, बहुत ही lightest particle है। So it's not a part of it's not going to contribute in the mass of an atom, I can say. So only proton and neutron. So whenever I ask what is nucleon number, you can say sum of proton and neutron. And whenever I ask what is mass number, you can say sum of proton and neutron. Simple, simple. Okay. Mass number is represented by A. Mass number is represented by A. And also mass number भी whole number होगा. Always mass number be a whole number. Remember. तो आप पूछोगे सर what is 55.8? No, this is not the mass number. This is atomic mass. देखो थोड़ा कंफ्यूज आप
अगर हो रहे हो, सो टू मेक इट वेरी क्लियर कि एटॉमिक मास एंड मास नंबर, दे आर डिफरेंट, ओके। अगर आपको मैं कहूं कि दिस इज न्यूक्लियन नंबर, सो इट वुड बी द होल नंबर। इफ यू हैव सीन कि क्लोरीन 35 भी होता है, क्लोरीन 37 भी होता है, तो भाई व्हाट इज 37? इट्स द होल नंबर, इट्स द न्यूक्लियन नंबर, आई कैन से इट्स अ मास नंबर। तो व्हाट इज 35.5? इट्स नॉट अ मास नंबर, इट्स एटॉमिक मास। अब अपने आप को क्लियर कर लो भाई, अपने आप को क्लियर कर लो। मेरी वीडियो बार बार बैकवर्ड फॉरवर्ड करके सुनते रहना, दिमाग में घुसा दो अपने बात। क्या बोला मैंने? मास नंबर इज ऑलवेज अ होल नंबर, एटॉमिक मास इज नॉट अ होल नंबर, ओके। तो ये आपको पता होनी चाहिए बात। मास नंबर आपको क्या बताएगा? सो लेट्स सपोज इट्स एन एग्जांपल दैट मैग्नीशियम इज हैविंग 12 इलेक्ट्रॉन, दैट इज योर एटॉमिक नंबर, एंड 24 is the mass number, and 24 is the mass number, is the nucleon number in fact. तो प्रोटॉन नंबर मैंने अभी आपको क्या बताया था? दो चीजें बताता है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन and proton, electron and proton, remember? So 12 electrons, 12 protons, how many neutrons I would be having? So you can subtract the mass number from the proton number. अगर आपको न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने हो ना, क्या कहा मैंने? अगर आपको न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने हो, सो व्हाट यू कैन डू, ओके, यू कैन सब्ट्रैक्ट द बड़ा नंबर फ्रॉम द छोटा नंबर to find out the neutrons. To find out the neutrons, what you can do, you can subtract the mass number from proton number, okay. So 24 minus 12 is equal to 12, तो 12 न्यूट्रॉन्स है इसके अंदर, याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, दैट्स वेरी इजी। इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, दैट्स वेरी इजी। बट न्यूट्रॉन, आप दो को सब्ट्रैक्ट करवा दो। if you are going to find out neutron if you are going to find out neutron okay, if you are going to find out neutron, so ultimately you can subtract the large number from the like the smaller number from the large number. बिल्कुल सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, ओके जी। चले, then we have, let's suppose it's an aluminium. Proton number is 13, mass number is 27, as this is the whole number. This is your mass, this is your mass. So 13 आपको बताएगा इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। 13 क्या बताएगा? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। So how many electrons it has? You will say 13 electrons. How many protons? You will say 13 protons. What about neutrons? बड़ा number minus का smaller number, that would be 14, which is equal to neutrons, which is equal to neutrons, याद रखिएगा, which is equal to neutrons. So aluminium के लिए 13 electrons, 13 protons, and how many neutrons? 14 neutrons. देखो कितना easy है। For chlorine, the proton number is 17. Mass number is 35. How many electrons? 17. How many protons? 17. How many neutrons? 35 minus 17. That is equal to 18 neutrons. तो मैं अगर आपको कोई सा भी दूं तो आप अब बता सकते हो, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। चलें जी, then we have ion. What is ion? Any charged particle. You know, ion is any charged particle. कौन सा चार्ज होना चाहिए? पता नहीं भाई, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। क्या बोला मैंने? नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, याद रखना, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयॉन्स, cation एंड anion, cation
an anion, cation, an anion. Remember, cation and anion. Cation and anion. Cation पे पॉजिटिव चार्ज, एनायन पे नेगेटिव चार्ज, कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज, एनायन पे नेगेटिव चार्ज। ओके, तो कैटायन बनता कैसे है? व्हेन समथिंग लूजेस इलेक्ट्रॉन। एनायन बनता कैसे है? व्हेन समथिंग गेन्स इलेक्ट्रॉन। सही कह रहा हूं ना? है भाई। कैटायन बनता कैसे है? व्हेन समथिंग लूजेस एन इलेक्ट्रॉन। और एनायन कैसे बनता है? व्हेन समथिंग गेन्स इलेक्ट्रॉन। देखो, मैं बिल्कुल सिंपल कर दिया मैंने आपके लिए। क्या कहा मैंने? है भाई, क्या कहा मैंने? व्हेन एनीथिंग लूजेस एन इलेक्ट्रॉन, व्हेन एनीथिंग loses an electron, तो cation would be formed, and when something gains electron, an ion would be formed। तो वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ओके, तो दो तरह के आयॉन्स आपको नजर आएंगे। क्या कहा मैंने? दो तरह के आयॉन्स यू विल सी, दो तरह के आयॉन्स यू विल सी, दो तरह के आयॉन्स यू विल सी, कैटायन एंड एनायन। सेट 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 सेट। ओके, ओके, इजी इजी इजी। चलें जी। So let's suppose it's magnesium 2 plus. It's what? It's magnesium 2 plus. You know, it's a cation. क्यों? Positive है। It's a cation. क्यों? Positive है, positive है, positive है, positive है। Positive means loss of electron. Positive means loss of electron. Loss of electron. Okay? तो it had 12 electrons, लेकिन +2 का मतलब 2 चले गए, तो कितने रह गए? 10 electrons। लेकिन 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 प्रोटॉन विल नॉट चेंज। प्रोटॉन विल नॉट चेंज। प्रोटॉन में थोड़ी चेंज आता है। प्रोटॉन में थोड़ी चेंज आता है यार। प्रोटॉन में कब से चेंज आने लग गया? नो, देयर इज नो चेंज इन प्रोटॉन्स। तो प्रोटॉन वही रहेंगे 12। प्रोटॉन वही रहेंगे 12। एंड न्यूट्रॉन के लिए द सेम थिंग। सो इन शॉर्ट आई कैन से के द चार्ज विल इफेक्ट ओनली, the charge will affect only what the number of electrons। बस इतनी सी बात है। तो बहुत आसान है ये। बिल्कुल बेबी बेबी है ये। बेबी कॉन्सेप्ट है, तो आपको याद होना चाहिए ये। ओके, चले जी, ये बताइएगा जरा। कैन यू टेल मी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दिस ऑक्सीजन हैज? बट फास्ट। 10. 10 इलेक्ट्रॉन्स। क्यों? Yes. क्यों? 8 initially and 2 it gains. एग्जैक्टली, 2 माइनस मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए। तो 8 + 2 कितना हो गया? 10 हो गया। 8 + 2 कितना हो गया? 10 हो गया भाई। 8 + 2 हो गया 10। 8 + 2 हो गया 10। 8 + 2 हो गया 10। बाकी जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे, बाकी जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे भाई मेरे, वो सेम रहेंगे। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे वो सेम रहेंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वुड बी द सेम। ओके, देखो, चार्ज का जो डिफरेंस आता है, इट वुड बी ओनली अफेक्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट वुड बी ओनली अफेक्टिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स इट। ओके, afterwards we have electronic configuration. Afterwards we have electronic configuration. Electronic configuration. So electronic configuration means कि when you have um, arrangement of electrons। भैया आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, आप उन्हें अरेंज करना चाहते हो, दैट मीन्स दैट दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपके घर मेहमान आ गए, आप उनको अरेंज करना चाहते हो, जो है ना, मतलब कि कुछ लोग इस तरफ, कुछ लोग इस तरफ, कुछ लोग बेडरूम में, और इसी तरह से कुछ लोग जो है वो क्या नाम है, मेन जगह पे बैठ जाएंगे। और डिफरेंट तरह से आपने उन्हें क्या कर लिया? अरेंज कर लिया इन डिफरेंट वेज, इन डिफरेंट वेज। सो सेम गोज विद दिस यार। यू हैव इलेक्ट्रॉन्स एंड यू हैव टू डू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम अरेंज करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को इन डिफरेंट डिफरेंट शेल्स। हम इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करेंगे इन डिफरेंट डिफरेंट शेल्स। जैसे कि वी हैव मल्टीपल शेल्स, एज आई टोल्ड यू के वी हैव फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड थर्ड शेल। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल एंड थर्ड शेल।
सो डोंट वरी कि 20 इलेक्ट्रॉन्स तक ही आता है, ज्यादा नहीं आता। सो टू मेक इट सिंपल, तो आपको सिर्फ 20 इलेक्ट्रॉन्स तक ही करना है। जैसे कि मैंने स्टार्ट किया ये क्लोरीन से, मैंने कहा राइट डाउन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन, मतलब 17 इलेक्ट्रॉन्स। कितने? 17 इलेक्ट्रॉन्स, 17 इलेक्ट्रॉन्स, 17 इलेक्ट्रॉन्स। तो 17 means your first shell would be having 2 electrons, है ना? Your first shell would be having 2 electrons, और your second shell would be having 8 electrons। 8 electrons आते हैं सेकंड शेल में, ओके। सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और थर्ड शेल में वैसे तो 8 आते हैं, लेकिन मेरे पास बचे कितने? 7। तो मैंने कॉन्फ़िगरेशन लिख दी 2,8,7। मैंने कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख दी? 2,8,7, एंड दैट्स इट। फर्स्ट शेल में 2, देन 8, देन 7। वैसे कैपेसिटी क्या थी? 2,8,8। दिस वाज द नॉर्मल कैपेसिटी, दिस वाज द नॉर्मल कैपेसिटी, दिस वाज द नॉर्मल कैपेसिटी। लेकिन भाई क्लोरीन के केस में होता ही कुछ ऐसा है, मैं क्या करूं? हम इससे ज्यादा कर ही नहीं सकते यार। ओके, तो 2 फर्स्ट शेल, 1 2, देन 3 4 5 6 7 8 9 10, सेकंड शेल में 8, और देन थर्ड शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज योर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन। तो आपने क्या किया पता है? आपके पास इलेक्ट्रॉन थे 17, आपने उनको अरेंज कर दिया। कुछ इलेक्ट्रॉन्स को फर्स्ट में डाल दिया, कुछ को सेकंड में, कुछ को थर्ड में। अब यहां अगर बच्चा मुझे बोले सर, सर मैं फर्स्ट शेल में 3 डाल दूं, सर, सर मैं फर्स्ट शेल में 3 डाल दूं, क्यों भाई? क्यों भाई? क्यों डाल दो भाई तुम? क्यों? 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 ये मर्जी से थोड़ी चल रहा है कोई। इट्स नॉट योर मर्जी, यू नो, इट्स अबाउट द कैपेसिटी। क्या इसकी उतनी कैपेसिटी भी है या नहीं है? द थिंग इज द कैपेसिटी। भाई अगर आपका रूम बड़ा है तो यू कैन यार, यू कैन डू एनीथिंग भाई, क्या कहते हो? यू कैन डू एनीथिंग दोस्त। लेकिन अगर आपका रूम है ही छोटा, तो क्या कर सकते हैं? अब हमारी तो गलती नहीं है। तो फर्स्ट शेल कैन नॉट हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। फर्स्ट शेल कैन नॉट हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसलिए मेरी मजबूरी थी, इसलिए मेरी मजबूरी थी वो, याद रखना। ऐसा नहीं कभी भी कुछ भी, सर सेकंड शेल में मैं जो है वो 17, यानी कि बजाय इसके कि मैं इसको 3 शेल में बनाऊं, सर मैं इसको यूं बना दूं, पहले 2 और फिर 15। भाई सेकंड शेल में मोर देन 8 आता ही नहीं है, तो आप कैसे 15? मतलब कॉमन सेंस की बात है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ इट्स अ फिक्स्ड, यू कैन नॉट चेंज इट, इन फैक्ट यू कैन नॉट चेंज, रिमेंबर यू कैन नॉट चेंज। इसी तरह से यू हैव कैल्शियम, you have calcium, calcium is 20, 20 means 20, 20 means 20। तो फर्स्ट शेल में 2 आएंगे, फिर देन यू विल बी हैविंग, फिर देन यू विल बी हैविंग के 8 इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में। ये देखो मैंने सेकंड शेल में 8 डाले, फिर थर्ड शेल में भी 8 आएंगे, और फिर फोर्थ शेल में आपके पास कितने आएंगे? 2 आएंगे। दैट्स द थिंग दैट यू नीड टू नो, दैट्स द थिंग दैट यू नीड टू नो। भाई आपको पता होनी चाहिए बात, ओके। तो कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन मैंने अभी आपको ये बताई है, किसकी? कैल्शियम की कॉन्फ़िगरेशन अभी हमने आपको यहाँ पर बताई है। ओके हो गया जी। अच्छा जी, आइए जरा आइसोटोप्स पर। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स दैट हैव द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। वो तमाम एलिमेंट्स जिनका प्रोटॉन नंबर सेम हो लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट हो, जिनका प्रोटॉन नंबर सेम हो लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट हो, तो दैट इज कॉल्ड आइसोटोप्स। यू नो, आइसोटोप का इलेक्ट्रॉन सेम होता है ना, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। इलेक्ट्रॉन की वजह से केमिकल प्रॉपर्टी होती है। जब इलेक्ट्रॉन सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या है? सेम है। याद रखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या है? सेम है। जब इलेक्ट्रॉन सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या है? सेम है। आई एम रिपीटिंग, जब इलेक्ट्रॉन सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या है? सेम है। सेम है, सेम है, सेम है, सेम है, सेम है। याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, पता होना चाहिए। ओके। फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों डिफरेंट है? क्योंकि न्यूट्रॉन डिफरेंट है।
फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों डिफरेंट है? क्योंकि न्यूट्रॉन डिफरेंट है। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों डिफरेंट है? क्योंकि न्यूट्रॉन डिफरेंट है। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, न्यूट्रॉन डिफरेंट है तभी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ओके जी, तो दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू नीड टू नो दिस, यू नीड टू नो दिस। ओके, तो देखो ये नेचुरली अकरिंग होते हैं, नेचुरली होते हैं, अल्लाह ने इनको नेचुरल पैदा किया है, अल्लाह ने इनको नेचुरल बनाया है। मेरे बस की बात नहीं है, ना इसको आप बना सकते हो ना मैं बना सकता हूँ, याद रखिएगा ये बात। ये नेचुरल होते हैं, नेचुरल, दे आर नेचुरल, रिमेंबर दे आर नेचुरल। ओके, तो तो क्लोरीन होता है ना, क्लोरीन, क्लोरीन के दो आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं इस दुनिया में, एक क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37, एक क्लोरीन 35 एक क्लोरीन 37, क्लोरीन 35 क्लोरीन 37। मैंने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, इट्स नेचुरल। तो जस्ट वी हैव टू डिस्कस कि जो क्लोरीन 35 होता है उसका मास नंबर इज 35 बट प्रोटॉन नंबर इज द सेम। जो क्लोरीन 37 होता है मास नंबर इज डिफरेंट बट द प्रोटॉन नंबर इज द सेम, सेम। ओके, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम सेम बट न्यूट्रॉन डिफरेंट है, न्यूट्रॉन डिफरेंट है। ओके, तो दे आर आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए भी आता है। अब एक और पोर्शन में बनाऊंगा, उसमें हम पास पेपर करेंगे। सो दैट्स द थ्योरी ऑफ atomic structure, that's the theory, basically that's the theoretical concept. Okay, so it's very easy, it's very simple. Okay, so we would be discussing the past papers of atomic like structure.